22, Chavin Company. The Treasury Department of Chavin, a listed company, aims to maintain a portfolio of around $360 million, consisting of equity shares, corporate bonds, and government bonds, which it can turn into cash quickly for investment projects. Chavin Company is considering disposing 27 million shares valued at 2.4 each, which it has invested in Odin Company. The head of Chavin Company's Treasury Department is of the opinion that should the decision be made to dispose of its equity stake in Odin, this should be sold through a dark pool network and not sold on the stock exchange where Odin's shares are listed. Okay. In the last few weeks, there have also been rumors that Odin may become subject to takeover bid. Okay. Odin Company operates in travel and um, leisure TNL sector, and the poor weather conditions in recent years, coupled with the continuing recession, has meant that TNL sector is underperforming. एक मिनट ना, ट्रैवल एंड लीजर अभी अंडर कर रहा है, ठीक है। हमारी कंपनी का काम क्या है भाई, वो तो दिया ही नहीं है। चाबिन कंपनी क्या करती है वो तो बताया ही नहीं है, ठीक है। ओवर द पास्ट 3 years, sales have sales fell by an average of 8% per year in TNL. However, there are signs that the economy is starting to recover, but this is by no means certain. Okay. Given below are the extra of the recent financial statements or other financial information of Odin and the T। अच्छा, ये लोग मोस्टली ओडिन पे फोकस कर रहे हैं। चैविन हमारी कंपनी का काम है कि हम सिर्फ बेच रहे हैं। ओके फाइन। तो ये सब उन्होंने दिए हुए एक्सट्रैक्ट्स ओडिन के, पीएनएल ओडिन का, एसओएफपी एंड इंफॉर्मेशन, डिविडेंड, एवरेज शेयर प्राइस, ठीक है ठीक है ठीक है। रिस्पी रेट, फाइन 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 फाइन। अभी explain what a dark pool network is and why Chavin may want to dispose of its equity stake in Odin through one instead of through the stock exchange where Odin company shares are listed. हम्म। उसके बाद क्या है, डिस्कस whether or not Chavin should dispose of its equity stake in Odin company, provide relevant calculations to support the discussion. Okay fine। पहले तो डार्क पूल नेटवर्क क्या है उसके बारे में बात करनी है ना। मुझे तो सीधा आंसर पे ही जाते हैं, बिकॉज इन थियोरी मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं है डार्क पूल नेटवर्क के बारे में। लेट्स लर्न व्हाट इट इज। डार्क पूल नेटवर्क अलाउज शेयर्स टू बी ट्रेडेड एनोनिमसली अवे फ्रॉम द पब्लिक स्क्रूटिनी। हाँ, ये तो बेसिक है कि जो शेयर मार्केट है उसके बाहर की चीज होती है ये डार्क पूल। मतलब वो नेटवर्क, दिस इज द मोस्ट बेसिक फर्स्ट लाइन दे हैव गिवन। No information on the trade order is revealed prior to it taking place. The price and the size of the order are only revealed once the trade has taken place. Two main reasons are given for dark pool network. First, they prevent the risk of other traders moving the share price up or down. Second, they often result in reduced costs because trades normally take place in the mid price between the bid and the offer, because dealers try and use their own private pools and thereby saving exchange fees, right? तो ब्रोकर डीलर्स के बीच में का जो फीस वीज रहता है वो सब बच जाता है। सेकेंडली, ये जो ट्रेडर्स होते हैं, कई बार क्या हो जाएगा, अगर ये चीज रिवील हो गई कि मैं एज अ मेजर शेयर होल्डर वहां से निकलने का ट्राई कर रहा हूँ, तो वो लोग पता है जानबूझ के कुछ ट्रेडर्स अपने शेयर्स बेच देंगे या शेयर प्राइसेस एकदम ही डाउन हो जाएंगे, जिसके वजह से मेरे को कम प्राइस मिलेगा। सो दिस इज वन वन थिंग। तो आता है चैविन कंपनीज होल्डिंग इन ओडिन इज 27 मिलियन शेयर्स आउट ऑफ द टोटल 600 मिलियन शेयर्स। अच्छा, मैं ना सबसे पहले यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ। जैसे अगर समझो मैं मेजर शेयर होल्डर हूँ 60% ऑफ द कंपनी का, और मेरे पास बहुत सारे फंड्स है, और अगर मैं ही निकल गया तो फिर ये 60% शेयर्स तो गए, कंपनी को बहुत सारे पैसे आउटफ्लो हो जाएगा, शेयर प्राइस सडनली ड्रॉप हो जाएगा। तो उसके पहले क्या पता है लोग क्या करेंगे,
जैसे ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई 60% वाला अभी निकलने वाला है, बाकी के 40% वाले सबसे पहले अपने सारे शेयर्स बेचना चालू कर देंगे, और शेयर प्राइस उतने से फॉल हो जाएगी, तो मेरे को उतनी शेयर प्राइस कम मिलेगी बेसिकली, 60% मतलब मेरे को। इसलिए ये इंफॉर्मेशन जो है शेयर होल्डर की, ये रिवील ना होने के लिए डार्क पूल नेटवर्क क्रिएट होता है, या इसमें ट्रेडिंग होती है। Chavin Company's holding in Odin is 27 million shares out of the 600 million shares. ये रहे 27 मिलियन शेयर्स आउट ऑफ 600 मिलियन, तो उतने ज्यादा भी नहीं है एक्चुअली। ये देखो इन्होंने पता है कैसे कैलकुलेट किया, 300 शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 0.5, तो इनको 600 शेयर्स मिल गए ऐसा। और 4.5% हमारी होल्डिंग है बेसिकली। इफ Chavin कंपनी सोल्ड अ लार्ज होल्डिंग ऑल एट वंस, द प्राइस ऑफ Odin शेयर्स मे फॉल टेम्पररीली एंड सिग्निफिकेंटली, एंड Chavin कंपनी मे नॉट रिसीव द वैल्यू based on the current price. By utilizing dark pool network, Chavin company may be able to keep the price of the share largely intact and possibly save transaction costs. Although criticism against dark pool systems is that they prevent market efficiency. हाँ, बेसिकली मार्केट एफिशिएंसी वही होती है ना कि हर एक ट्रेडर के पास या हर एक पब्लिक में ट्रेड करने वाले इंसान के पास सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी मार्केट इंफॉर्मेशन कम ज्यादा हुई किसी के पास, तो फिर इट इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग, और वो इलीगल होता है ऐसा। पर तो इसमें बोला प्रिवेंट मार्केट एफिशिएंसी बाय नॉट रिवीलिंग बिड ऑफर प्राइसेस बिफोर द ट्रेड। Proponents argue that in fact market efficiency is maintained because of large sale of shares will not move the prices down artificially and temporarily. Proponents मतलब जो लोग इनके फेवर में है, क्रिटिसिज्म्स जो लोग होते हैं वो लोग अगेंस्ट बोलते हैं, प्रोपोनेंट मतलब जो लोग फेवर कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं भाई हमारा डाकू ही बेस्ट है ऐसा। प्रोपोनेंट, मैं एक बार फिर भी दिखा रहा हूँ प्रोपोनेंट्स मीनिंग। Proponent is a person who supports the idea, plan and cause publicly, ऐसा ठीक है ना। So this is what it is. Now we come down, मुझे तो ये पूरा question is only just theory and explanation, because ये देखो ना, discuss whether or not Chavan should dispose of its equity stake in Odin company, provide relevant calculation for the same. Up to 8 marks are available for calculations। अच्छा, तो 8 marks calculations के लिए है, good। ने एवरेज अर्निंग्स पर शेयर, एवरेज डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड शेयर प्राइस ठीक है। आई थिंक अभी हम लोग को 8 मार्क्स है ना कैलकुलेशंस के लिए। लेट्स ट्राई टू डू 10 रेशियोज, कुछ भी रैंडमली, बट 10 रेशियोज हम लोग करने का ट्राई करते हैं। नीचे उन्होंने शेयर प्राइस, इक्विटी, बीटा, ये सब चीजें दी हुई हैं। मैं बोलता हूँ चालू अपन थोड़ा बेसिक से करते हैं। पर्टिकुलर्स 2013, 2014, 2015, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इससे चालू कर देते हैं। तो 218 डिवाइड बाय 1342, ये हो गया 203 डिवाइड बाय 1335 एंड 123। भाई साहब इतना कम, डिवाइड बाय 1185। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन फॉलिंग। हर एक चीज का हम लोग बाद में ग्रोथ निकाल लेंगे। फर्स्ट सीरियल नंबर, फर्स्ट जो कि इसकी ग्रोथ, ग्रोथ को मैं बोल नहीं और अंडरलाइन ही कर देता हूँ।
सेकंड, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स कर लेता हूँ। 160 डिवाइड, एक्चुअली ये ना बहुत बेसिक बेसिक चीजें कर रहा हूँ मैं फिलहाल तो, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन सेक। 160 डिवाइडेड बाय 1342, 144 डिवाइडेड बाय 1335, 72 डिवाइड बाय 1185। ठीक है, ये मैंने हो गया। अभी मैं एसेट टर्नओवर कर लेता हूँ। ये देखो, मुझे इसीलिए कैसा है पता है क्या, वो तीन चीजें वो होती है राइट, लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिट रेशियोज, या फाइनेंशियल रेशियोज ना, ऐसे उसको प्रॉफिट रेशियोज, इंटरेस्ट कवर रेशियो निकालूं क्या, इंटरेस्ट कवर रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो इज 218 डिवाइड बाय 23। क्या हो गया, अरे 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 अरे, 218 डिवाइड बाय 23, 203 डिवाइड बाय 27, 123 डिवाइड बाय 35। तो प्रॉब्लम जो है ना, वो देखो प्रॉब्लम इंटरेस्ट में है। सो बेसिकली हम लोगों ने डेट बहुत ज्यादा लिया हुआ है, हमने बहुत ही ज्यादा, हम देखो हमारे बॉन्ड्स हर बार इंक्रीज हुए जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दोज बॉन्ड्स हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। दैट्स वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स। फिर एसेट टर्नओवर पे आ जाए क्या एक बार। आर ओ सी कर लेता हूँ। आर ओ सी का फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो कितना आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 218 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल बेसिकली। सो दैट इज ब्रैकेट ओपन 605 प्लस 365, तो सी कंट्रोल वी, यहाँ पे 203 डिवाइड बाय 629 एंड 368। द प्रॉब्लम इज कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कम हो रहा है, वही मेन इशू है पहली बात तो। ठीक है ना, 605 से 611 एंड 360। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बैंक लोन्स पे ऑफ करे लेकिन हमने बॉन्ड ज्यादा ले लिए। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो बहुत ज्यादा है इसमें, मतलब बदलाव है ना। अगर मैं ग्रोथ लगा लेता हूँ, ग्रोथ देखोगे तो फॉल हो रही है, ह्यूज फॉल इन ग्रोथ। इसके बाद अभी आर ओ सी, एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर वाज सेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एसेट्स, नहीं, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को तो मैं यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बस, यहाँ में ऊपर में ना, ये देखो यहाँ पे ऊपर में सिर्फ सेल्स की वैल्यू 1342, यहाँ पे 1335,
यहाँ पे 1185. So asset turnover is also falling. So because there is a huge loss in the profit, and so the main dynamics is basically because of the reduction in sales. There has been a corresponding reduction in the operating profits. Even in 2005 or 15, we can see that the company has not been able to maintain its costs as well, because of which there has been a sudden fall in the operating profit margin itself. The operating profit margin falls from 16.24% to 10.38%, indicating that the reduction in sales is not the only cause of concern, but the increase or the because of the fact that the company is not able to maintain its costs properly. There has been a significant fall in the operating profit margins. सेकेंडली फाइनेंस कॉस्ट पे आ जाएंगे कि देखो यार, फाइनेंस कॉस्ट भी हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे। फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम 23 million to $35 million. This finance cost is heavily dependent upon the fact that we have taken that we have tried to pay off the bank loan in year 15. However, there has been a significant increase in the bonds, and this increase in bonds uh, was done at a very high interest rate. This high interest rate comes into picture because of the fact that company's cost of capital has kept on increasing, um, and the company's debt capacity. Does a deeper look should be kept on, or does a more detailed look should be kept up on the company's क्या बोलते हैं debt capacity and credit rating as well. um, if we see here, company's equity beta is increasing. The increase in equity beta indicates that the value of equity and value of debt are actually falling, right? Because see, जो asset beta रहता है वो तो constant ही रहता है पूरे सेक्टर एवरेजेस के लिए। हाँ देखो, TNL सेक्टर एवरेज इक्विटी बीटा इज 115 114, मतलब is much lower than Odin's equity beta. This is because the Odin's equity beta is increasing because of the value of equity and value of um, डेट फॉलिंग। बिकॉज वो दोनों फॉल हो रहे हैं, उनकी वैल्यू बेसिकली मार्केट में फॉल हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉल इन मार्केट वैल्यू, उन लोग का देखो कैसे होता है, एसेट बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी, एंड देन वो फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर, जब वो ब्रैकेट के अंदर का फॉर्मूला नीचे जाता है डिनोमिनेटर में, तब जाके तुम्हारा एसेट बीटा डिवाइड बाय दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू इक्विटी बीटा। एंड व्हेन दैट इक्विटी बीटा shrinks, or when that denominator keeps on shrinking, the equity beta keeps on increasing, and that's why the equity beta has increased. This is my analysis. अभी देखो, earnings per share, they have been constant. Earning per share have been constant. नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये देखो, earnings per share of average have been constant, लेकिन um, ये तो TL का एवरेज है। ओ, मुझे अर्निंग्स पर शेयर निकालना पड़ेगा, इन्होंने मुझे अर्निंग्स पर शेयर दिया नहीं है, सो मैं वो निकाल लेता हूँ ना। अब मैं एक्चुअली सोच रहा था कि मैं नेक्स्ट कौन से मतलब रेशियोज निकालूं। सिक्स में ना मैं क्या करूँ, करंट रेशियो निकाल लूंगा। फिर फिफ्थ में मैं, सॉरी सेवन में मैं लिक्विडिटी रेशियो निकाल लूंगा। उसके बाद एट्थ में मैं क्या करूंगा, डिविडेंड मुझे निकालने थे, मैं ईपीएस निकाल लेता हूँ, ठीक है, ईपीएस इज मच बेटर ना, ईपीएस का मतलब अच्छा है। फिर एट्थ में पी रेशियो निकालूं क्या, एवरेज शेयर प्राइस, ओडन एवरेज शेयर प्राइस, पी रेशियो निकाल लेता हूँ, चाहिए तो इजी है ना, मार्केट वैल्यू तो मिल ही जाएगी, मार्केट वैल्यू तो दी हुई रहेगी किधर में किधर। नाइन्थ में मार ये हो जाएगा। फिर टेंथ में मुझे वो डिविडेंड के लिए, डिविडेंड्स कितने मेरे को मिल रहे हैं ना, मुझे वो कैलकुलेट करने हैं। तो फॉर दैट डिविडेंड्स मेरे को अच्छे खासे चीजें लगेंगी। मिल जाएगा ना, देखो डिविडेंड पर शेयर इतना है, तो मैं एक्चुअली डिविडेंड्स दे कितने रहा हूँ, इजीली मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ क्या कैपिटल में निकालूं क्या, कैपिटल निकालने में कितना टाइम 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 लगेगा।
है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस ब्रैकेट ओपन दिस इनटू दिस। चलो फटाफट फटाफट खाली इधर करंट रेशियो सबसे लास्ट में करते हैं, ईपीएस पहले फटाफट फिनिश ऑफ कर देते हैं। ईपीएस कितना है, अर्निंग्स पर शेयर 160 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितने हैं, 600 ही है। देखो पूरे साल में मेरे पास 300 ही है, तो 600 ही है, डिवाइड बाय 600। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ईपीएस। फिर ईपीएस के बारे में हम लोग लेक्चर दे देंगे कि देखो ईपीएस हमारा कितना कम है बाकी कंट्री से, मतलब बाकी के इसका कितना ज्यादा है, वो सब मतलब बता देंगे। earnings per itself has fallen, and because of that EPS, our P ratio have also fallen. See हमारा EPS as compared to sector average तो कहीं पे क्लोज भी नहीं है, मतलब we are not even close to them, we are not even close to them, है ना। इसको पहले साल को छोड़ दो, पहले साल को हम खारिज कर देते हैं, को खारिज कर देते हैं। बाकी सालों को देखो, ईपीएस देखो 0.35, हमारा तो 0.12 ही है, विच इज वेरी लेस। अभी पी रेशियो इसके करने के लिए क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर की हमारी, हमें दी गई है एवरेज शेयर प्राइस देखो 2.5, 2.5 डिवाइड बाय दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अभी खाली इस 2.5 को हम लोग बदलते रहेंगे, शेयर प्राइस 2.5 से 2.4 की हो जाएगी, और यहाँ पे 2.2 की। P ratio has kept on, because of which there's an increase in the P ratio as well. अभी डिविडेंड्स निकालने हैं, डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर कितना है, 0.18, 0.2, 0.15। सो तो फिर मेरे पास कितने शेयर्स थे, 600 ही थे, तो मैंने एक्चुअली दिए हैं 108। अस्सी देखो, मेरे डिविडेंड्स पर शेयर 108, 120 और 100, और फिर वो सीधा 90 पे आ गए। सो इन 2014 इट सीम्स दैट कॉविन और सॉरी ओडिन कंपनी हैड पेड 120 million as dividends, just so that they can retain their current shareholders trust on their company and await for the future so that things can get better. However, so was not the case in 2015, because of which there was a sudden decrease in the amount of dividends that was being provided. A decrease of $30 million was being seen. The shareholders would not be happy with this, especially the shareholders which who had invested in the company only and only to get short-term return in the form of dividends. Thus, there can be the case that Chavin company, देखो चाविन कंपनी, ये देखो इन्होंने खुद ने बोला हुआ है, दस चाविन कंपनी विच कैन टर्न, ये देखो उनका उनके पोर्टफोलियो में वो क्लियरली बताते हैं, विच कैन टर्न इनटू कैश क्विकली फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। सो दैट ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट इनका फटाफट कैश आती रहे। लेकिन ये लोग को डिविडेंड नहीं मिला इस साल, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे डिड नॉट गेट द डिविडेंड विच दे वांटेड। दे आर नाउ दे आर वांटिंग टू लीव द कंपनी और वांटिंग टू नॉट इन्वेस्ट इन द कंपनी एनी मोर। ठीक है ना। अभी आर एम माइनस आर एफ कितना है, 10% -4%, इक्विटी बीटा 1.5, सॉरी हाँ, वन वन 1.5, 2013 के लिए 1.5, 1.62। So see, the cost of capital has kept on increasing steadily from 13% to now it is a significant 16%. This significant increase in 16% of cost of capital has taken place because of the increase in the equity beta, and the increase in the equity beta has taken place because of the value of equity and value of debt decreasing. This value of debt and value of equity decreasing takes place because of first of all the decrease in the share price movements of the company, and also the fact that as the company keeps on increasing its debt, the interest benefit, um, they will keep on getting the interest benefit as a tax deductible expense.
that is the Modigliani and Miller's with tax model. However, after a particular point of time, that interest benefit or that tax relief claim on the interest will not be taken up as a benefit, and slowly will start losing its interest, or will slowly start moving up. The curve will slowly start moving up, because of which the cost of capital may see a increase in it. अभी one good thing about the current scenario is that the current liabilities and the current assets particularly, we can see that in 2013, 14 and 15 the working capital, or actually इसको ऐसे बोलते हैं कि the trade payables or the creditors have been paid on time. The creditors have been paid on time. Actually ना एक मिनट ये ना good thing नहीं है, this is actually a bad thing, because I have मैंने ये सीखा था, मेरे सर ने मेरे को बोला था कि if our current situation is in a cash crunch, and still if we have paid the trade payables on time and have reduced the payables, then that means suppliers had actually increased their um, covenants, or have increased their demand for the money, and are demanding money from the from Odin company. Otherwise, so can be the situation that the suppliers would have warned Odin company that that the goods would not be provided to them unless and until the previous installments or payments have been made. Um, they would have tightened their controls. हाँ, वो अच्छा word है कि they would have tightened their controls over the payables. Second, अभी और क्या बोल सकता हूँ? एक्चुअली ना, ये मैंने बोल दिया टाइटन देयर कंट्रोल. सो देयरफॉर वी कैन सी दैट द करंट रेशियो, अभी करंट रेशियो पे आ जाते हैं. एक्चुअली मैं लिक्विडिटी रेशियो निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे कैश की क्वेश्चन दी ही नहीं है. अम, हाँ, करंट रेशियो 128 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 130, 142 डिवाइडेड बाय 135, 126 डिवाइडेड बाय 135. Oh, so we can say this, कि by looking at all the ratios as of now, we can say that in the year 2014, Odin Company had taken extra efforts in order to to provide their shareholders, in order to provide for their shareholders. This was done by tightening, by not paying the suppliers some part, but ये इतना main point नहीं है. This was done by providing them extra dividends, and the cash was arranged by not paying the suppliers some part of it, or by certain cost controls being undertaken. Um, in the year 2014, they were optimistic that in the upcoming years, the cash position or the financial position of the company would strengthen. However, so was not the case, and the ratios have fallen further. Therefore, a significant dip from the year 2014 to 15 can be seen in all the ratios. Uh, for example, let's take into consideration the operating profit margin itself. It has fallen from 15% to a significant 10.37%. The current ratio falls from 1.05% to a 0.93%. ब्रैकेट में लिख देंगे, करंट रेशियो शुड एटलीस्ट बी 1, ऐसा कुछ बोल सकते हैं. EPS itself sees a significant dip of almost half the of all almost नहीं of half the price fallen. फिर P ratio increases, वो तो बोल देंगे, ऑलमोस्ट डबल P रेशियो हो गया है. Cost of capital has increased by 2.4 percentile points. वही मैंने ये सब तो बोल दिया. डिविडेंड पे आउट रेशियो मुझे एक्चुअली निकालना था. मैंने देखो यहाँ पे डिविडेंड्स निकाल लिए. अब डिविडेंड पे आउट रेशियो वो कैसे निकलता है? डिविडेंड डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज 160. डिविडेंड पे आउट रेशियो हम निकालते हैं 144 एंड 72. है
व्हाट? वेट 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 वेट। ओ भाई, ये देखो, डिविडेंड पेड पेआउट रेशियो इज 120, मतलब हमारे पास प्रॉफिट्स ही 72 के हुए हैं, लेकिन हमने डिविडेंड 90 का दिया है। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने बराबर किया है ना, 0.5 यहाँ पे इंटू 600। हाँ, सो दैट मीन्स ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिविडेंड पर शेयर हैज फॉलन फ्रॉम $0.2 to $0.5, which itself is a bad sign for the shareholders, or will put the shareholders in a back foot at first. Secondly, when we look at the dividend payout ratio, it was 67.5% in 2013, which grew to 83.33% because of the hard efforts, or because of the efforts of the Odin company to retain their shareholders. But still, to their shareholders, to retain their shareholders. However, when we come down to 2015, we see that the dividend payout ratio increases to 125%. A payout ratio more than 100% determines that the company did not have the profits to pay out the dividends, first of all. And secondly, the fact that company has taken the bonds, bank loans, or company, or the amount of finance raised by the company itself was used to pay out the dividends. Now this could have been done from the reserves, as we can see that there has been a significant fall in the reserves from 329 to 311, or with the help of bonds, which has increased from $250 to $260। ये बोल सकते हैं भाई, काफी अच्छे पॉइंट्स मिल गए। यू हैव स्टिल कवर्ड बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स, विच इज नाइस। नाउ वी कैन मूव अहेड, अभी इनका पढ़ लेते हैं। इन्होंने डिविडेंड यील्ड निकाली है। फाइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये बराबर हमने निकाला, अर्निंग्स पर शेयर बराबर है, पी रेशियो परफेक्ट है। गियरिंग, ओ गियरिंग नहीं निकाले हमने। गियरिंग इज समथिंग व्हिच वी कुड हैव रिमूव्ड। गियरिंग, डेट टू इक्विटी। हम्म 365 to 300 नहीं, डेट अपॉन डेट, अच्छा ये लोग ने डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी निकाले हैं, ठीक है। सो 365 डिवाइड बाय 365 प्लस 300। Oh no, what have they done? They have taken 605, what? 605, अच्छा उन्होंने रिजर्व्स के साथ लिए, फाइन फाइन फाइन। हम्म 368, 368, 629, 971। 37%। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे हैव कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट कवर हमने बराबर से कैलकुलेटेड, डिविडेंड यील्ड उन्होंने निकाली है, फाइन। पी, अच्छा उन्होंने T&L सेक्टर का निकाला है, प्राइस टू अर्निंग्स और डिविडेंड यील्ड, फाइन। अदर कैलकुलेशंस में उन्होंने क्या किया है, अदर कैलकुलेशंस, रेवेन्यू ग्रोथ निकाली है, ग्रोथ तो हमने भी निकाली है, विच इज फाइन। ओडेन कंपनीज एवरेज फाइनेंस कॉस्ट, अच्छा इंटरेस्ट ओ, दे हैव रिमूव्ड कितने परसेंट का इंटरेस्ट हो सकता है। दैट दैट वाज प्रीटी स्मार्ट। उन्होंने निकाला है कि कितने परसेंटेज अब हमारे शेयर होल्डर्स, या सॉरी, हम हमारे डेट हमारे चार्ज कर रहे हैं। जहाँ से हमने लोन लिया वहां से पहले हमें 5.1 करते थे, बट एज अवर मैंने बोला ना, वो डेट कैपेसिटी एंड क्रेडिट रेटिंग फॉल हो गई। इन्होंने उस चीज को परसेंटेज में दिखाया कि भाई कैसे फॉल हुई, 5.9 और 7.6% के साथ। दे हैव डन अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस एक्चुअली, व्हिच मे बी आई हैव नॉट डन। ओडेन कंपनी शेयर प्राइस चेंजेस, हाँ ये मैं ग्रोथ वोथ कर सकता था, एक्चुअली मुझे करना चाहिए था। सॉरी, मैं कर सकता था एक्चुअली।
कैपेम। हाँ, ये तो उन्होंने बस वो निकाला है ना, सेक्टर एवरेज 2015। ये इनको 15 को 13.6 कैसे आया? ओ आई जस्ट रियलाइज, मैंने गलती से ना नहीं नहीं, प्लीज डोंट टेल मी, प्लीज डोंट टेल मी। इक्विटी बेटा मैंने कितना लिया है? 1.5, हाँ बराबर लिया था। सब तो सही लिया था। 2013 के लिए मेरे को ज्यादा आया फिर। ये लोग ने सेम कैलकुलेशन 2013, 12.4%, इन्होंने 2012 का है, लेकिन ये ना, लाइक इफ यू सी, ये 12 का नहीं है। अच्छा, मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया, मे बी ऐसा हो सकता है कि मैंने के ही निकाला है। हाँ, मैंने के ही निकाला है, नॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने के ही निकाला है। ये ये हो सकता है। हम्म। मैंने 2013, मैंने 12 को भी कंसिडर नहीं किया ना उतना ज्यादा, बस एक ही साल में किया हुआ है। ठीक है, आई थिंक मोर, ये देखो, ये देखो, रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन कैपेम, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये मैंने बराबर निकाला है, परफेक्ट। बट फिर ये क्या है, रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन कैपेम? सेम ही तो है। हाउ इज दिस डिफरेंट? 12 पॉइंट 2013 के लिए, हाउ आर दिस? अच्छा, ये रिटेल सेक्टर, ओ मैं क्या मंद हूँ मैं। ये इन्होंने TNL सेक्टर के लिए किया है ये। हमने हमारी कंपनी, जो जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किए ना, वो सारे हमने हमारे कंपनी के लिए किए हुए हैं। TNL सेक्टर के लिए मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं किए हैं। ओके, बट शायद वो भी करने चाहिए थे, मेक सेंस, क्योंकि सारे उन्होंने उस चीज का भी इक्विटी बीटा और डिविडेंड में दिया हुआ है ना। तो आई शुड हैव, मैं ये क्या करूंगा पता है, ये पूरा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दूंगा, इनका EPS और सब कुछ कैलकुलेशंस वहां पे कर लूंगा एग्जाम में, सो आई थिंक ठीक है। ओके ओके ओके। डिस्कशन के 8 मार्क्स के लिए, बाकी का डिस्कशन अभी। द फॉलोइंग डिस्कशन कंपेयर्स द परफॉर्मेंस ऑफ ओडिन कंपनी ओवर टाइम टू द TL sector and against expectations in terms of it being a sound investment. It also considers the wider aspects of which Chavin company should take account of and further information which company should consider before coming to final decision. In terms of Odin company's performance between 2013 and 15, in terms of wooden performance 2015, it is clear from the calculations above that company is experiencing considerable financial difficulties. Profit margins have fallen and so has the EPS, whereas the amount of gearing appears fairly stable. Gearing तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया था, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं था, बट gearing स्टेबल है ऐसा दे हैव सेड। And the interest cover has deteriorated, obviously. The reason for this is that borrowing costs have increased from an average of 5.1% to an average of 7.6% over the 3 years. The share price has decreased over the 3 years as well, and in the last year, so has the dividend yield. This would indicate that the company is unable to maintain adequate returns for its investors. Please also see, हाँ ठीक है भाई। Although Odin Company has tried to maintain a dividend yield which is higher than the sector average, its price to earnings ratio has been lower than the sector average between 2013 and 14. It does increase significantly in 2015, but this is because of the large fall in EPS. हाँ, तो P रेशियो एक्चुअली बढ़ना अच्छा रहता है, लेकिन P रेशियो बढ़ा क्यों है? क्योंकि EPS कम हुआ है, एंड नॉट बिकॉज की मार्केट वैल्यू पर शेयर बढ़ी है। बेसिकली अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा और EPS बढ़ेगा तो ठीक है। तो एंड देन P रेशियो इफ इट इज इंक्रीजिंग फाइन, न्यूमरेटर इंक्रीजिंग, P रेशियो इंक्रीजिंग गुड। लेकिन अगर EPS फॉल हो रहा है तो हमारा डिनोमिनेटर कम हो रहा है, जिसकी वजह से P रेशियो बढ़ रहा है, सो दैट्स ऑल्सो दैट इज बैड। This could be an indication that there is less confidence in the future prospects of Odin compared to the rest of TL sector. This is further corroborated by the higher, corroborated I think supported. This is further corroborated by higher dividend yield
which may indicate that the company has fewer value creating projects planned in the future. Finally, whereas the T&L sector's average share price seems to have recovered strongly in 2015, following a small fall in 2014. Odin Company's share price has not followed suit and the decline has gathered pace in 2015. It would seem that Odin Company is poor performer within this sector, obviously. शेयर प्राइस, देखो इन्होंने ऐसा क्यों बोला मुझे समझा नहीं। हाँ, टीएनएल सेक्टर्स एवरेज, अरे मैं बार बार ना ये लोग एक्चुअली ओडिन और टीएनएल सेक्टर सब बार बार आ रहा है ना, तो मैं वही कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे लगा था कि ये लोग इसके लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं फॉर एवरेज शेयर प्राइस ऑफ ओडिन, क्योंकि ये तो एक्चुअली कम हुआ है। पर एवरेज शेयर प्राइस इसका ये लोग बोल रहे हैं कि सेक्टर का जो एवरेज शेयर प्राइस है वो बढ़ गया है, ओडिन का कम हो गया है, सो दे आर कंपेयरिंग दिस। मेक सेंस। आगे, this view is further strengthened by comparing the actual returns to the required returns based on the CAPM. Both the company and the TL sector produced returns exceeding the required return in 2013. Odin Company experienced a similar decline in 2000 to the sector in 2014. However, in 2015, the TNL sector appeared to have recovered, but Odin's performance has worsened. CAPM की बात करें कि CAPM जो है वो थोड़ा बेटर हुआ है, लेकिन ओडिन के केस में वो और वर्सन हो गया है। वही हो रहा है, 2014 में ओडिन ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि भाई मैं बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड करता हूँ शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, बट देन इतना खुश कर दिया कि फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कैश उतना बचा नहीं था ऑपरेशन में, तो फिर एक बहुत मतलब वो सडन फॉल आ गया। Taking the above into account, the initial recommendation is for Chavan to dispose of its investment in Odin. However, there are three important caveats which should be considered before the final decision is made. First caveat, caveat क्या होता है? Caveat meaning warning or provision of specific stipulations. Okay, okay. Caveat is a warning. Okay. First caveat is that Chavan should look at the balance of its portfolio of investment. A sale of 58 million worth of equity shares with a portfolio to total of $360 million may cause the portfolio to become unbalanced and for unsystematic risk to be introduced into portfolio. ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम डायरेक्टली 58 मिलियन बेच रहे होंगे फ्रॉम 360 मिलियन, सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन वो अपन निकाल सकते हैं प्रपोर्शन से। कितना होगा ये 5/50, 10% आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग निकाल रहे हैं बेसिकली, है ना। 10% से भी थोड़ा 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 ज्यादा ही होगा। Presumably, the purpose of maintaining an unbalanced portfolio is to virtually eliminate unsystematic risk by ensuring that it is well diversified. Chavan Company may want to reinvest the proceeds from the sale of Odin if it decides to proceed with the disposal in other equity shares with same sector to ensure that portfolio remains balanced and diversified. Second caveat is that Chavan may want to look into the rumors of a takeover bid of Odin Company and assess how realistic it is. अच्छा, कोई अगर और टेक ओवर कर रहा है तो क्या वो इस कंपनी को और बेटर बना सकता है कि नहीं, और कौन सी बड़ी कंपनी उसको टेक ओवर कर रही है वो। इट इज देयर फॉर इट सॉरी इफ दिस इज अ रियलिस्टिक चांस that such a bid may happen soon, Chavan may want to hold on to its investment in Odin for the present time. This is because takeover bids are made at a premium, and a return to Chavan company may decrease if Odin is sold during the takeover. Hmm. And last, third caveat is that चैवान मे वांट टू कंसिडर ओडेन्स फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। हाँ, ये तो पता ही चल गया था क्योंकि उन्होंने खुद ने बोला हुआ था कि ये कंपनी, ये इकोनॉमी शायद बेटर हो सकती है वगैरह, उन्होंने खुद ने बोला था। द थर्ड क्या इज दैट चैवान मे वांट, ठीक है, द कैलकुलेशन अबाउ आर बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस बिटवीन 2012 and 15 and indicate an increasingly poor performance. However, economy is beginning to recover, albeit slowly and erratically. Chavan may want to consider how well placed Odin company is to take advantage of the improving conditions compared to other companies in the same industrial sector. If Chavan Company decides
that none of the caveats materially affect Odin's poor performance in position, then it should dispose of its investment in Odin company. If Chavan decides, एक मुझे last line थोड़ा रुको. None of the caveats materially affect Odin's poor performance. अच्छा, मतलब किसी भी चीज का materially कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, then it should dispose of its investment in Odin. Nice.